Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. Now we are going to finish our algorithm. This is our last topic, that all pair. Going to study all pairs shortest path. All pairs shortest path. तो आज हम लोग का एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा. ओके. Fine. So it is, see now what is the difference between all pair shortest path Floyd version and the single source shortest path? We have studied single source shortest path. So in single source shortest path, the single source shortest path हमने पढ़े थे, just like Dijkstra algorithm, Bellman-Ford algorithm. What is the work there? If you are having a node like here, this, like this, if you are having a node, now from there you are finding the, from this node you are finding the shortest path to all other node, to all other node, to all other node, like from all other node, means from this is the source and this all the destination, means you want the shortest path from S to A, S to B, S to C, S to D. This is single source shortest path. Okay, that is going to be single source, that from Kolkata you want to go Bangalore, Hyderabad, like this. Okay, like from Kolkata you want to go to all these states like Hyderabad, Bangalore, Pune. So this is like single source shortest path you are finding. But here it's saying all pair shortest path, means like in India we are having some city like Kolkata, Bangalore, Pune, Hyderabad, Mumbai. So now you want that the shortest path from all this pair, like Pune to Hyderabad also you want the shortest path, Kolkata to Hyderabad you want the shortest path, Kolkata to Mumbai also you want, Kolkata to Bangalore also you want, so Bangalore to Hyderabad also you want shortest path. So means you want to consider all the pairs. ठीक है, आपको सब पेयर का शॉर्टेस्ट पाथ जानना है. सिंगल सोर्स में हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही सोर्स रहता था, उससे हम सारे का पता करते थे. ठीक है, तो क्या, सो कैन आई यूज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ दैट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ? क्या मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ यूज कर सकता हूं पता करने के लिए कि सारे इस सोर्स से सारे पेयर्स का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं. सो कैन आई यूज single source shortest path algorithm, single source shortest path, single source shortest path algorithm, single source shortest path algorithm. So can I use single source shortest path algorithm to find all pair shortest path? सोचिए आप लोग थोड़ा. all pair shortest path, सिंगल सोर्स शॉर्टेड पाथ में क्या था, एक सोर्स था उससे हम सारा, एक सिंगल सोर्स था उससे हम सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ पता कर रहे थे, एक सोर्स से सारे नोड का. अब लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ एक नोड से सारे नोड पे नहीं जाना है, सारे नोड पे सारे जितने पेयर्स, जितने कॉम्बिनेशन है, जैसे के और पी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, के और बी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एच और बी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एम और बी का शॉर्टेस्ट पाथ होगा. सो दैट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, all pair shortest path. So can I use single source shortest path to find the all pair shortest? It's a very good question. सिंगल सोर्स हमने पढ़े थे, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़े, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम हम लोग पढ़े, तो क्या हम यूज कर सकते हैं क्या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू फाइंड द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ? सोचिए आप लोग. क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है. So can I use single source shortest path to find all pair shortest path? बताइए.
So we can use. See, it is correct. We can use. Why we can use? See, from here you can call Dijkstra algorithm from here. Dijkstra you can call. So it will give single source shortest path from P to K, P to B, P to H, P to M. Now again you will call single source shortest path from here. It will give single source from here to here, here to here, here to here, here to here. Means now from every node you are going to call single source shortest path. हर नोड में आप क्या कीजिए, पहले P पे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कीजिए, फिर K पे पता कीजिए सिंगल सोर्स, फिर B पे, फिर M पे, फिर H पे, हर नोड को लीजिए और हर नोड से सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कीजिए, तो आप तो कर पाएंगे। देखिए पहले आपको एक ही सोर्स था, एक सोर्स से आपने सारे नोड्स पे शॉर्टेस्ट पाथ पता किए, यहां बोल रहा है कि जितने पेयर्स बन रहे हैं सबका आपको शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है। तो आप क्या किए, सर मैं यहां से पहले कर दिया, पहले पुणे से किया, फिर कोलकाता से वो रिक्शा चला दिया, फिर बैंगलोर से कर दिया, फिर मुंबई से भी कर दिया, फिर हैदराबाद से कर दिया, तो हम कर पाएंगे लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज। वेरी गुड, सो वी कैन डू इट बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज। ओके, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट विल गेट इंक्रीज। सो वी कैन यू सी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए सभी को क्लियर है तो वेरी गुड। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ विल यूज दिस सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ? अब क्या है, तो पहले मैं इसका थोड़ा लिखा देता हूं कि सिंगल्स ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, उसके बाद मैं इस पे जाता हूं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कभी पढ़े तो आपको याद भी रहे। सो प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जितना मैं अभी बोला हूं सब मैं लिखा देता हूं क्योंकि नोट्स जरूरी है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स वी हैव टू टेक we have to take every node, and we have to take every node, and we have to take we have to take every other node. ओके, अदर नोड, एक नोड लिए उसके बाद उसको छोड़ के सारे नोड को लिए, एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड वी हैव टू फाइंड दी एंड वी हैव टू फाइंड दी shortest path between, we have to find the shortest path, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यू कैन से एज ए पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और पाथ भी बोल सकते हैं, बिटवीन बिटवीन। इसके बाद हम लोग इसमें गेट का क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पूछा गया है, तो आज हम लोग का एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दोस, so shortest path between all those two nodes. Okay, अब रिलेशनशिप क्या है आपका? So hope it is done. If it is not done, then you please take the screenshot. Okay, fine. So in short, you can understand that it is going to be all pair shortest path. Okay, every pair you have to find the shortest path. Okay, so what is the relation? So the relation between, if someone asks you what is the relation between single source shortest path and the all pair shortest path, what is the relation? So the relationship between क्या रिलेशन है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का, एंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। So relationship between single source shortest path and all pair shortest path. So यहाँ से we could run the single source. We could run the single source shortest path. We could run the single source shortest path from every vertex. Then this is the relation. We could run the single source shortest path from every vertex. Then it will
become, then it will become all pair shortest path. Then it will become all pair shortest path. It will become all pair shortest path. But but then but then time complexity will increase. But then time complexity will increase. But then time complexity will. Okay. So this is the relation. Now we will see what is going to be the time complexity. So we know that we are having a two single source shortest path. One is Dijkstra algorithm, other is Bellman-Ford algorithm. Okay. So we are having a two algorithm. One is Dijkstra algorithm. So what is going to be the one is Dijkstra algorithm, and another is your Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm. So if we use Dijkstra algorithm to find the single source all pair shortest path, so single source shortest path for Dijkstra algorithm time complexity is E log V. It is going to be E log V. Okay. Now you are going to run in every vertex. See, it is saying that from every vertex it will become. See, we have to call single source shortest path from every vertex. Now, if you call single source shortest path from every vertex, from source, if you have called the time complexity is E log V for only from one node. Now, if you call from every node, then it will take V is the number of vertices into E log V. Then time complexity will be E log V. Now, dense graph, in case of dense graph, you know that E is going to your V square. Then time complexity will become, then time complexity is going to become V into V square log V. That is going to be V cube log V. This is for single source shortest path. And this is going to be your time complexity for all pair shortest path. Okay, so this kind of question they can ask if you will use Dijkstra algorithm to find the all pair shortest path, and what is going to be the time complexity. So it is going to be V into E log V, because for one vertex if you find the single source shortest path, it is going to be E log V. एक वर्टेक्स के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, तो आपको हर वर्टेक्स के लिए सिंगल सोर्स पता करना है, तो आप V इंटू कर दिए. अगर अब डेंस ग्राफ है, यू नो दैट इफ इट इज अ डेंस ग्राफ, number of edge is equal to V square. So in dense graph it is going to be V square log V. Now sparse graph, in sparse graph or sparse tree, you can say, what is going to be E is going to your V, then it is going to your, then time complexity is going to your V into V log V. So it is going to be V square log. Okay, these are the two time complexity you are going to get if we use Bellman-Ford, sorry, Dijkstra algorithm. If we use Dijkstra algorithm, if we use to find the, if we use Dijkstra algorithm to find the all pairs shortest path. Now we will see, क्योंकि क्वेश्चंस करने से पहले आपको सारी चीजें रिवाइज भी तो होना चाहिए. चलिए, अगर ये आप लोग लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, डन बोल दीजिएगा. तो अगर आप लोग Dijkstra एल्गोरिथम यूज करेंगे तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा इन केस ऑफ स्पार्स, इन केस ऑफ डेंस दिस इज गोइंग टू बी. अब Bellman-Ford यूज करेंगे तो आपका क्या आएगा. देखिए यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और एक प्रॉब्लम है Dijkstra एल्गोरिथम में. क्या है, एक और प्रॉब्लम है, याद कीजिएगा. Dijkstra एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम था. Dijkstra एल्गोरिथम इज हैविंग वन प्रॉब्लम, that's why we went to Bellman-Ford algorithm. Now what is the problem, why we use Bellman-Ford algorithm, why we use Bellman-Ford algorithm. देखिए क्या है प्रॉब्लम, but there is a problem because Dijkstra algorithm not work for negative edge. For negative edge it will give the correct answer.
it will not work for negative age cycle. Okay, negative age cycle. Don't miss that term. There is a difference between negative age and negative age cycle. We have seen that Dijkstra algorithm work for negative age. It not work for negative age cycle. Okay, but there is a problem. But there is a problem. But there is a problem that. But there is a problem that Dijkstra algorithm. But Dijkstra algorithm. But Dijkstra algorithm can't work. Can't work for negative negative weight, for negative age cycle, for negative age age cycle. That's why that's why we have to we have to go for that's why we have to go for Bellman-Ford algorithm. That's why we have to go for Bellman-Ford algorithm. That's why we have to go for Bellman-Ford algorithm. If we have a we have a negative age cycle. But one thing you should keep in mind that in practical we use Dijkstra algorithm only, because in practical you will not have the negative edge between any two nodes. If you want to connect from Kolkata to Bangalore, if you are having a two router, if you want to connect between these two, the cost will never be negative. It will always going to be positive. So in real world we use Dijkstra algorithm only, because it is going to, because never you are going to get a distance between any two places, any two router is going to be negative. So but in real world we use Dijkstra algorithm, but as a theoretical it will not work for negative age cycle. Okay, it will not work for negative age cycle. So now if you will use Bellman-Ford algorithm, now Bellman-Ford time complexity is VE. Now if we will use Bellman-Ford Bellman-Ford algorithm, so if we will use now Bellman-Ford algorithm to find single to find all pair shortest path, then what is going to be the time complexity? Now if we'll use Bellman-Ford algorithm to all pair find all pair shortest path to find all pair shortest path. Okay. Bellman-Ford algorithm to find all pair shortest path. So you know that the time complexity of Bellman-Ford algorithm is VE, number of vertices into H, because in every for every vertices you are going to do relaxation. For every edge you are going to be do relaxation for E number of times, whatever number of vertices. That's why you are going to get a time complexity in Bellman-Ford is going to be V, that we have seen. Okay, so time complexity is going to be V, but now if we'll use all pair shortest path, then time complexity will be for for once you have find, for every vertex you have to find, that is going to be V into VE. It is going to be V square E. Now in case of dense graph, now same way in case of dense graph, the E is going to your V square. So time complexity is going to be V square into V square, that is going to be big of V to the power 4. Now in case of sparse graph, E is going to your V. So that time complexity is going to your V square into V, that is going to be big of. Okay. See, so whether you are going to use Dijkstra algorithm or Bellman-Ford, the time complexity is huge. See, in case of dense, it is going to be big of V to the power 4. In case of this, is going to be V to the power क्यूब log V. क्लियर है ना सभी को? तो अगर डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिल जा रहा है V क्यूब log V. अगर बेलमैन-फोर्ड यूज करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जा रहा है V to the power 4. So that's why we go for इसमें जाते हैं हम लोग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं, ताकि हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो. तो कभी ये चीज नहीं बोलना है कि हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा कि नहीं. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिलेगा,
ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। सो ये हमारा कैसे हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ पता किए, बाय यूजिंग बेलमेंट फोर्ड एंड डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ये हमने बताया। अब हम लोग जाएंगे डायनेमिक अप्रोच में। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज यू कैन कमेंट, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज वी विल गो टू द डायनेमिक अप्रोच ऑफ द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। और एक चीज याद रखिएगा, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम लोग का ग्रेडी अप्रोच है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि हम लोग हमेशा मिनिमम एज को लेते थे, मिनिमम एज को लेते थे। चलिए, मुझे लग रहा है सभी को क्लियर है। फाइन। सो डाउट रहने से पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। मैं प्रॉब्लम करके भी बताऊंगा, ठीक है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो मैं क्वेश्चंस में लूंगा, गेट में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें। तो आपको पता है डायनेमिक अप्रोच अगर आप यूज करेंगे, डायनेमिक अप्रोच ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, डायनेमिक अप्रोच में आप कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है तब, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है तब, और रिकरेंस इक्वेशन है तब, ठीक है। तो यहाँ पे सो हियर वी आर हैविंग ऑल दिस थ्री थिंग्स, so that's why we can apply dynamic approach and we can reduce the time complexity. Okay, we are even going to see the code example, everything we are going to see. Okay, so all these things I am going to cover in this one lecture only. So if we'll use डायनेमिक अप्रोच, तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। पहले हम लोग क्या पता करने की कोशिश करेंगे, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। मींस ट्राई टू राइट द बिगर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम, so that if we will solve the small problem we will able to solve the bigger problem. Okay, optimal substructure, optimal substructure, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, देखिए ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि आपके पास वर्टेक्स है, आपके पास वर्टेक्स है सेट जैसे 1 2 3, एन वर्टिसेस है। ओके, यू आर हैविंग एन वर्टिसेस, तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है। लेट डी आई जे, लेट डी आई जे, आई से जे आपको शॉर्टेस्ट पाथ, एक नोड है जिसका आई है, सो आई जे बिलोंग्स टू, आई जे बिलोंग्स टू वर्टेक्स बी, इस वर्टेक्स में बिलोंग कर रहा है। लेट डी आई जे, ऊपर में के, देखिए क्या बोल रहा है, बी दी शॉर्टेस्ट पाथ, be the shortest path or the shortest distance, or the shortest distance from I to j, from I to j, with traveling, with traversing or traveling at most k vertices, k vertices, k एक नंबर, ठीक है। तो आपको पता करना है कि एक शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता करना है डिस्टेंस आई से जे के लिए, उसके लिए आप नंबर ऑफ वर्टिसेस जो आप इनकाउंटर कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, मैक्सिमम आप कितने वर्टेक्स ट्रैवल कर रहे हैं, के। देखिए आपके पास टोटल वर्टेक्स है, यू आर हैविंग ए टोटल वर्टेक्स ऑफ 1 2 3 टिल n, यू आर हैविंग ए n वर्टिसेस। नाउ यू वांट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम डी आई टू जे बाय using the nodes k vertices, by at most using the k vertices. So be the shortest distance from I to j with traveling at most k vertices. Okay, at most k vertices. Okay, so here we don't want to consider all the vertices. We want to consider by using minimum nodes. Okay, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है आई से जे के लिए, और हम मिनिमम नोड्स कितना कंसीडर करेंगे, एटमोस्ट कवर करेंगे के वर्टिसेस। क्लियर है क्या ये सभी को? प्लीज कमेंट वेदर इट इज क्लियर और नॉट। सो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है, वर्टिसेस है आपके 1 2 3 टिल n, एंड यू वांट दिस सिंगल सोर्स मींस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स i to j। ओके, एंड k vertices is there from i to j with traveling at most k vertices, आप ट्रैवल करेंगे at most k vertices, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आपको जाना है, आपको कवर करना है कहां से कहां, आई से जे तक जाना है, आपको जाना है आई से जे तक।
सो आई से शुरू किए, वहां 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बीच में के आ सकता है, फिर एल आया, एम आया, फिर जे आया। तो आप ट्रैवल सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ पता कर रहे हैं, डिस्टेंस पता कर रहे हैं आई से जे के लिए, आई से जे के लिए, और कवर यू आर गोइंग टू कवर एटमोस्ट के वर्टिसेस। अब के वर्टिसेस को मैक्सिमम के नंबर ऑफ वर्टिसेस लेंगे, नंबर बोल रहा हूँ, के नहीं बोलो, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो एक क्या हो सकता है, आप शॉर्टेस्ट पाथ पता किए जिसमें आप इस वर्टेक्स, इस के वर्टेक्स को आप कंसिडर किए, और एक में क्या हो सकता है आप कंसिडर नहीं किए। एक में क्या हो सकता है, आपको सिंगल सोर्स जब यहाँ से मतलब शॉर्टेस्ट पाथ नोड आई से जे के लिए जब आपको चाहिए, तो आप हो सकता है ना कि आपको या फिर ट्रैवल इस नोड को ट्रैवल करना पड़े, या फिर इस नोड को ट्रैवल नहीं करना पड़े सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए, या फिर हमको इस रास्ते में हमें के वर्टेक्स मिल सकता है, केथ वर्टेक्स, या फिर नहीं मिल सकता है। ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता, सिंगल सोर्स में शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए आई से जे के लिए, वर्टेक्स आई से जे के लिए अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है, तो उसमें हम दो केस हो सकता है कि या फिर केथ वर्टेक्स उसमें होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि जो डी आई जे का जो डिस्टेंस है नोड आई जे से, उसको मैं पी कंसिडर कर लेता हूं, उसको मैं पी कंसिडर कर लेता हूं। अब एक में क्या हो सकता है कि के क्या हो सकता है, एक में हो सकता है कि के इज इक्वल टू जीरो। मतलब आपको, मैंने बोला कि आप यहां से पता कीजिए आई से जे तक आपको जाना है, और उसमें आपको नंबर ऑफ जो वर्टिसेस आप जो कंसिडर करेंगे वो जीरो है ही नहीं है। मतलब वो क्या है, डायरेक्ट आई और जे से जो वेट होगा वही आपको कंसिडर करना है। ये के बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो आप कंसिडर कर रहे हैं। देखिए ये नोटेशन ध्यान दीजिएगा, डी आई जे विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई टू जे, आई से जे के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विद ट्रैवलिंग एटमोस्ट के वर्टिसेस। के वर्टिसेस आप ट्रैवल करके आप शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कर रहे हैं वर्टेक्स आई से जे के लिए। तो अगर अगर सॉरी, अगर मैं बोलूं कि आपके मैं कोई वर्टेक्स ही नहीं दे रहा हूं, कोई वर्टेक्स नहीं है, डायरेक्ट पता कीजिए क्या होगा, तो उसका वेट क्या होगा, डब्ल्यू आई जे जो वेट है। देखिए क्लियर है, डब्ल्यू आई जे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप कंसिडर कीजिए, जीरो नहीं है, आप कंसिडर कीजिए, now you are having some vertices that you can travel to go from I to J. Now one you can do that without including the kth vertex, you can find the shortest path without including that. So then you are going to find the shortest distance from Dij by k minus 1, k minus 1। ठीक है, आपको एक वर्टेक्स, आपने kth वर्टेक्स को कंसिडर ही नहीं की, तो आपके नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, k minus 1। अब एक में आप क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, आप इसे कंसिडर, इस पाथ में इसे कंसिडर कर रहे हैं। तो जब पाथ में कंसिडर करेंगे तो एक पाथ क्या हो जा रहा है, 1 से 3, और दूसरा पाथ क्या हो जा रहा है, एल से एम, यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। आपको वर्टेक्स आई से जे पे जाना है, अब इसमें आप केथ वर्टेक्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पहले 1 से 3 के पास जा रहे हैं, फिर एल से एम के पास में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किए, एक ये था, तो इन दोनों का हम मिनिमम लेंगे, इन दोनों का हम मिनिमम लेंगे। आपने क्या किए, पहले आई से आप के पास गए, ठीक है, फिर आप के से आप जे के पास गए। देखिए ये है हमारा रिकरेंस इक्वेशन भी दे रहे हैं, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी यहीं पे आ रहा है। देखिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ पता करना था आई से जे के लिए, आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस था, मैक्सिमम आप ले सकते थे के वर्टिसेस, मैं मान लिया कि उसका वैल्यू पी है। तो अब आप क्या, एक में क्या मैं बोल दिया कि सर नंबर ऑफ वर्टिसेस ही नहीं है, आपको डायरेक्ट पता कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने वेट पता कर लिया कि आई जे का जितना। दूसरा क्या है, मैं वर्टिसेस दे रहा हूं, तो एक में आप क्या किए कि आप कंसिडर नहीं कर रहे कि आप kth वर्टेक्स को कंसिडर करेंगे पाथ जाने के लिए। मींस अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल, अगर कोलकाता से आपको बैंगलोर जाना है, तो आप हैदराबाद से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, नहीं मैं हैदराबाद से नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट ही जाऊंगा, डायरेक्ट ही जाऊंगा, मतलब इस वर्टेक्स को कंसिडर नहीं करूंगा, उसके अलावा पुणे से जा सकता हूँ, कहीं और से जा सकता हूँ। तो आपने पता किए डिस्टेंस डी आई जे, डिस्टेंस आई टू जे, उस नोट को हटा के, तो कितने नोट्स बच गए, के माइनस 1। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं हैदराबाद से होके जाऊंगा, तो पहले आप कोलकाता से हैदराबाद जाएंगे, फिर हैदराबाद से बैंगलोर। तो पहले आई से आप के पास गए, फिर के से आप जे के पास गए, के से आप जे के पास गए। तो इसमें इसके बीच में जब यहाँ पे गए, इसके बीच में, तो या इसके बीच में, जो इस पाथ के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो रहे हैं, देखिए मतलब इसको तो कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच के पाथ के बीच में यहाँ पे के तो नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के माइनस 1, और यहाँ भी हो जाएगा के माइनस 1। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं,
इवन जब मैं भी खुद बीटेक में था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी ये समझने में। देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका रिकरेंस इक्वेशन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपको कोई डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्टेक्स आई से जे के लिए, और आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आप कंसीडर कर सकते हैं के, तो उसके पास दो केस हो सकते हैं। पहला क्या कि नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर जीरो है, बेस कंडीशन। ये क्या हो गया, बेस कंडीशन। ये तो हो गया हमारा बेस कंडीशन। जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको आई से जे के पास जाना है और आपको कोई भी वर्टेक्स आप कंसिडर नहीं करेंगे, उसके पाथ में आपको कोई कंसिडर नहीं करना, तो आप डायरेक्ट वेट लिख दिए डब्ल्यू आई से जे के लिए, डब्ल्यू आई से जे के लिए। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप कि नंबर ऑफ वर्टेक्सेस में है, जीरो नहीं है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो उसमें क्या हो सकता है, आप kth वर्टेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये कंसीडर है व्हेन वी आर कंसीडरिंग kth वर्टेक्स। और उसमें क्या है, जब हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, kth वर्टेक्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो ये क्या है, विदाउट इंक्लूडिंग kth वर्टेक्स। देखिए समझ में आया कि नहीं, प्लीज एवरीवन कमेंट विदाउट इंक्लूडिंग, विदाउट इंक्लूडिंग नोड के। ओके, आप नोट के को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, इंक्लूडिंग नोट के। प्लीज एवरीवन कमेंट इंक्लूडिंग। देखिए समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। डी आई से जे के लिए जाना है, वर्टेक्स आई से जे के पास आपको जाना है, ठीक है। तो डाउट यहीं पे होता है, इसमें ही डाउट होता है। तो उसमें आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस कुछ दिए हैं, के नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और वो ग्रेटर है जीरो से, वो ग्रेटर है जीरो से। तो अब क्या हो सकता है, एक पाथ अगर आप कंसिडर कर रहे हो, आई से आपको जे के पास जाना है, एक में क्या कर सकते हो कि आप वो पाथ कंसिडर ही नहीं करो जिसमें के नोड है। इसमें केथ नोट है, देखिए इसमें विदाउट इंक्लूडिंग दी नोट के आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस बच गए, के माइनस वन नोड्स बच गए। और आपने डिस्टेंस फिर रिकर्सिवली कॉल कर दिया कि डिस्टेंस पता कीजिए वर्टेक्स आई से जे के लिए। और दूसरा क्या है कि आप इंक्लूड कर रहे हैं के को, तो बीच में कहीं पे अगर आप इंक्लूड करेंगे के वर्टेक्स को तो बीच में कहीं पे मिलेगा हमें। सो वन से के पास आप जा सकते हैं, पहले आई से के पास जाइए, फिर के से आप जे के पास जाइए, के से आप जे के पास जाइए। देखिए पहले वो आई से के पास जाइए, फिर के से जे के पास जाइए। तो जो जब आई से के पास जा रहे हैं तो उसके पाथ में क्या केथ वर्टेक्स है, नहीं है। ये तो कंफर्म है ना कि उसके बीच में नहीं है। आई से जे के बीच में जाने के लिए, अच्छा कोलकाता से हैदराबाद जाएंगे तो क्या इसके बीच में क्या हैदराबाद मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। ये चीज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आई से के पास जाना है लेकिन उसके बीच में आपको तो केथ वर्टेक्स नहीं मिलेगा। कोलकाता से हैदराबाद जाएंगे, फिर हैदराबाद से बैंगलोर जाएंगे, तो इसके बीच में भी ना हैदराबाद मिलेगा, ना इस पाथ में भी हैदराबाद मिलेगा। तो जब आप इसे कंसिडर कर रहे हैं तो आई से के पास जाएंगे, के से जे के पास जाएंगे, लेकिन बीच में आपको केथ वर्टेक्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर एक नोड आपका क्या हो गया, कम हो गया। सो के-1 होप इट इज क्लियर। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर्स। वी आर एबल टू डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स, वी आर एबल टू डिवाइड द बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स इन सच ए वे दैट सॉल्यूशन ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम इज ए, ये इंपॉर्टेंट है, गेट में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। गेट क्वेश्चंस आप कंसिडर कर सकते हैं कि गेट में आपसे पूछे कि इसका रिकरेंस इक्वेशन क्या है, जैसे हमने देखे थे कि एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे, आपसे पूछेंगे कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। गेट क्वेश्चन इसे कंसिडर कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, इस तरह तो हमने देखे, लेकिन अब प्रॉब्लम्स करेंगे कैसे, प्रॉब्लम्स करेंगे कैसे। तो देखिए प्रॉब्लम्स हम लोग पे जाते हैं, एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, एग्जांपल लेते हैं उसके बाद हम आपको समझाएंगे। सो एग्जांपल देखिए, ये आपको जो एल्गोरिदम है ये सारे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और इसका ये क्या है, डायनेमिक जो अप्रोच है, यू कैन here also there is some problem, so let me first write. So in this algorithm we can, so graph could be either directed or undirected. So you write some point. So it is not like that you only you can only apply this algorithm on directed graph. You can apply in both directed as well as in undirected graph. Okay. So all pair shortest path, all pair shortest path algorithm, all pair shortest path algorithm can be
can be applied either in directed or undirected either in directed or undirected graph. This algorithm this algorithm this algorithm has the capacity this algorithm has the capacity this algorithm has the capacity to work this algorithm has the capacity to work on negative weight weight negative weight in age. It can work provided that provided that the graph provided that the graph does not provided that the graph does not contain negative weight negative weight cycle so if it is having a negative weight cycle, this algorithm will also fail. Okay, so you can work here negative weight age, you can work, but negative weight cycle you can not. Okay, because because this algorithm because this algorithm cannot differentiate. So let you first write it, then I will go to the next slide. Can't differentiate can't differentiate between can't differentiate between age negative age and negative age, same as fixed algorithm. Okay. So this algorithm can be applied in both directed as well as on undirected graph, but it should not be applied on negative age cycle. Okay, because it is same as digital algorithm, it is not able to distinguish between negative age and negative age cycle. Now with the example we will find the all pair shortest path. Okay, then we will see the time complexity, space complexity, then previous year gate question, then algorithm also we will see. Fine. So now I am going to take the example. So let me take a graph. Let me take a graph. So this is the graph. First step we have to find the D0. D0 means, say, step 1. Like gate 0 means number of vertices is 0. Okay. So if in gate exam they will give you a graph and they will ask you to find the all pair shortest path, then how to approach that we are going to see. This is the example, and our work is to find these all pair short means from 1 to D what is going to be the shortest distance, 1 to 4, 2 to 4, 3 to 4. Okay. So we will use D0. It means set of D0 means set of all distance. Okay, set of all distance between between all pair between all pairs in which there is no node. Zero means you are finding a shortest path between all pair. In between there is no node means in the path there you are not going to get a single node. No node. Set of all distance between all pair in which there is no node no node between no node between any two pair. No node between any two pairs. That is the distance. It means the distance of the path. It means the distance of the path containing
means distance of the path containing at most at most one edge. So maximum in the distance you will have one edge. So this is like the base condition that I have told you here, that in between means when you are finding the shortest path between I to k, and in between you are having zero of nodes. So between node v and node I and j, you are not having any vertices, d0. Okay, d0. So this is d0. Okay, so in between there will be no nodes. So what is d0? So d0 is going to your, here you write the nodes like 1, 2, 3, 4. Here also you write the nodes 1, 2, 3, 4. Now see, 1 to 1, what is going to be the distance from 1 to 0? Because you are already in. Now 1 to 2. 1 to 2 here is your 11, direct. Okay. In between you are not going to consider any nodes. 1 to 3. 1 to 3 is your 1 to 3 is your 1. Now 1 to 4 is your 6. 1 to 4 is your 6. Now see, this is a undirected graph. So whatever this weight matrix, this d0 is like same as weight matrix. D0 is like same as weight matrix. So and it is going to be symmetric, and it is going to be symmetric because 1 to 1 is your 0, 1 to 2. So if you will go 1 to 0 there also, then 2 to 1 is 11 only. Why? See here, 1 to 2 and 2 to 1 distance is same because it's an undirected graph. 1 to 2, 11, 2 to 1, 11. So since it is a symmetric matrix, so whatever you are getting here, you write here also. 11, 1, 6. See. Now 2 to 2 is going to be 0, 2 to 3. So now 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3 is your 7, 2 to 3 is your 7, 2 to 4, 2 to 4 is your 3, 2 to 4 is your 3. Now 3 to 2. See, now again, since it is going to be symmetric, you apply here. So 2 is going to be 7, 3. You can write here. And 3 to 3 is your 0. Okay, and 3 to 4 is your 3 to 4 is your, I have not written, it is 2. 3 to 4 is your 2. So this row and this column will be same. So 1702. Now 4 to 4 is 0. Okay. See, so why? So you write, give a note, and you can write. And D0 is symmetric graph. Is symmetric graph. क्या है symmetric है because the graph is graph given because the graph given is undirected graph because the graph given is undirected graph. Okay, अनडायरेक्टेड ग्राफ जब भी मिलेगा तो वेट मैट्रिक्स d0 ये सब क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. ठीक है. सो whenever whenever undirected graph is given, whenever undirected graph is given, the adjacency matrix or weight matrix या adjacency matrix या weight matrix or weight matrix will simply be will be symmetric. अच्छा, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो सिमेट्रिक है. डायरेक्टेड रहता तो क्या होता, डायरेक्टेड होता तो क्या होता बताइए, विल बी सिमेट्रिक. डायरेक्टेड होता तो क्या सिमेट्रिक होता, विल बी सिमेट्रिक. एंड इन द डायरेक्टेड ग्राफ बताइए डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता, वी गेट एसिमेट्रिक ग्राफ. तब सिमेट्रिक नहीं होता, एसिमेट्रिक होता. ठीक है, एसिमेट्रिक. ठीक है. तो पहले d0 पता कर लिए, अब d1 पता करेंगे. तो d0 मतलब क्या था कि आपको जब 1 से 1 के पास जाना है, 1 से 2 के पास जाना है, 1 से 3 के पास जाना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसके बीच में आप कोई भी नोड्स को कंसिडर नहीं करेंगे. 0 नोड्स यू आर कंसिडरिंग, नो नोड्स. अब d से d1
तो आपको सिंगल्स ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ पता करेंगे सारे का, उसमें आप उसके बीच में आप नोड वन को कंसिडर कर सकते हैं, आप नोड वन को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, सेट ऑफ ऑल पेयर shortest path, set of all pair shortest path between, set of all pair shortest path in such a way that, in, so it is set of all pair shortest path in such a way that, in such a way that, such a way that path is allowed to go through node 1, such a way that the path is allowed, the path is allowed to, मतलब नोड जीरो, या नोड जीरो से जाइए या फिर वन से जाइए, नोड वन को आप कंसिडर कर सकते हैं टू गो थ्रू, टू गो थ्रू नोड, ओके। सो अगर नोड वन को कंसिडर करके आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है तो आप नोड वन को कंसिडर कीजिए, अगर कंसिडर नहीं करके शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है तो उसको कंसिडर मत कीजिए, ओके। सो इस ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन केस, in case if the pair, in case if the pair have, in case if the pair have shortest path, in case if the pair have shortest path, if it is, if it go through, if it go through, if it go through node 1, if it go through node 1, then we take, then we take that, then we take that path, then we take that path, otherwise, otherwise we take the previous path, otherwise we take the, otherwise we take the previous path। देखिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, otherwise we take the previous path only, otherwise we take the previous path only, only which is in D0। देखिए यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पता कर रहे हैं सारे नोड से, सारे पेयर से, तो अब आप क्या है, नोड वन को कंसिडर कर सकते हैं उनके पाथ में। तो आपको देखना है कि अगर आप नोड वन को कंसिडर कर रहे हैं तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, पहले नहीं करके, देखिए पहले बिना किसी को नहीं कंसिडर किए थे तो हमें ये मिला, अगर नोड वन को कंसिडर करेंगे तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है तो हम उसे लिखेंगे, अदरवाइज हम उसे कंसिडर, नोड वन को पाथ में कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए इन केस इफ द पेयर हैव शॉर्टेस्ट पाथ इफ इट इज गो थ्रू नोड वन, अगर शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है अगर हम नोड वन से जाएंगे, देन वी टेक दैट पाथ, तभी हम वो पाथ लेंगे, अदरवाइज वी टेक द प्रीवियस पाथ ओनली विच इज इन डी जीरो, अदरवाइज हम प्रीवियस पाथ लेंगे जो डी जीरो में है, ठीक है। तो हम पता करेंगे कि मतलब क्या है, हमें डी वन में क्या है कि अब हम नोड वन को उस पाथ में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इस तरह हम लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया 1 2 3। सो देखिए पहले जब डी जीरो अब किए थे तो उसमें वन तो था ही, यहाँ मतलब अगर वन से वन जीरो पता कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी आपका नोड वन है, तो जो पहले आ रहा था वही सेम होगा, क्योंकि नोड वन तो पहले से ही कंसिडर कर चुके हैं आप, ठीक है। नोड वन तो आप कंसिडर कर लिए ना, तो वही तो मिलेगा, ठीक है। देखिए ये वाला पेयर सेम ही रहेगा क्योंकि आपने नोड वन पहले से ही कंसिडर कर चुके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इस पाथ में जब आप किए थे, जब when you have calculated this one, see when you have calculated d0, here already you are considering node 1 in this path, in every path, because node 1 you are considering, here also node 1 you are considering, okay, so that's why it is going to be same। Now in 2 to 2 it is going to be 0, previously we were directly going to 2 to 2 0, now 2 to 3, 2 to 3, now you can go see 2 to 3, now you will take minimum of 1, what you can do, you can do directly 2 to 3, the previous you can see d0, other you, what you can do, you can go 2 to 1, then from 1 to 3 you will go, okay। So this is one path when you will take node 1, so it is d1, and when you are not considering node 1, so minimum of this you are going to take, so 2 to 3 is your, the 2 to 3 you have seen here, 2 to 3 is your 7, 2 to 3 is your 7, and 2 to 1 is your, 2 to 1 I am seeing from my
graph of my from my notebook. So 2 to 1 is your 11 and 1 to 3 is your 1. So minimum is 7, so it will be 7 only. So like this we have to calculate the shortest path between all pairs. So 2 to 3 I have calculated. Now 2 to 4 I have to calculate. Now see, it is going to be symmetric. So 2 2 and 2 3, 2 3, then 3 2 is going to be same. Now this 2 4. So 2 3 and 3 2 is going to be same since it is a symmetric. So in this way we can save our time. Now 2 to 4. So it is going to be minimum. One you can directly go to 2 to 4. You have considered node 1. Okay. Now other what you can do, you can go to 2 to 1, then from 1 to 4 you can go. So minimum you are going to take. So 2 to 4 is your 2 to 4 is your 3 and 2 to 1 is your 11 and 1 to 4, 1 to 4 is your 6. So it's going to 3. The previous one only you got. So it's going to 3. So here also you are going to get 3. Okay. So because 2 to 4 is going to your 4 to 2. Same. Now you have seen 3 to 3 is 0. Now 3 to 4 you are going to consider 3 to 4. So 3 to 4 is going to your minimum of, first you can directly go 3 to 4 without including the node 1. If you want to include the node 1, then 3 to 1 you go first, then from 1 to 4 you go. Now take which is out of these two, which is the minimum. So 3 to 4 is your 2. You can see your graph. Now 3 to 1 is your 1 and 1 to 4 is your 6. 1 to 4 is your 6. So minimum is your 2. So 3 to 4 is your 2. 3 to 4 is your 2 and it is going to be symmetric. Now see, whatever this we have got, it is same as D0. It is same as D0. It means that when we find the shortest path between all the pair, including the node 1, it is as good as without including the node 1. ठीक है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता करना था हर पेयर का. अब हम उसमें इंक्लूड कर सकते थे नोड 1, लेकिन नोड 1 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तभी हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है क्योंकि वो D0 के बराबर है. ठीक है, सो नोट करके अब लिख लीजिए कुछ चीजें. जब भी आपको, जैसे यहाँ पे हमने क्या किए थे, यहाँ पहले से ही आई 1 था तो इधर ऐसे ही हो गया, यहाँ भी 1 है तो इधर ऐसे ही हो गया. तो नोट करके आप लिख लीजिए, whenever node I is already included in the source or destination. आप अगर I के लिए पता कर रहे हैं, whenever node I is already included, या फिर सोर्स या डेस्टिनेशन में अगर इंक्लूडेड है, इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी सोर्स और डेस्टिनेशन और destination and destination, then when we are giving it liberty, to go through node I, node I, it will it will give the same answer. Will give the same answer as previously. So first row, because of that. So row, first row and column, first row and first column value will be, so first row and first column value will be same as okay, because we are finding the, so all pairs shortest path including the node 1. Okay, so node 1 is already there in first row and first column, so it will be same. Okay, it will be same. The first row and first column value will be same as DG. Okay. Fine. So up now we will find D2. So D2 का मतलब क्या है?
D2 का मतलब क्या है? D2 means all pair shortest path including the node 0, 1, 2. मतलब आप इसके पाथ में आप नोड 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट, सेट ऑफ मिनिमम, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। सेट ऑफ ऑल मिनिमम, सेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट, सेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट, सेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट, सेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट between, set of minimum cost between every pair, between every pair, between every pair in which we could allow, देखिए could allow नोड जीरो, हम नोड जीरो का अलाउ कर सकते हैं, 1 and 2, ओके। सो इट इज सेट ऑफ मिनिमम कॉस्ट, ये क्या है, सेट है मिनिमम कॉस्ट का बिटवीन एवरी पेयर, हर पेयर का मिनिमम कॉस्ट हम पता कर सकते हैं, इन विच वी कुड अलाउ नोड जीरो, नोड 1 and 2, जिसके हम क्या अलाउ कर सकते हैं उसमें, या नोड जीरो अलाउ कर सकते हैं, या नोड 1 अलाउ कर सकते हैं, या नोड 2, मेरे ऊपर है, हम लोग के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, अब जब D2 अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो D0 देख के आप कैलकुलेट मत कीजिए। अब जब D2 आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं, D2 जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो D0 देख के कैलकुलेट मत कीजिए, आप D1 देख के कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपने शॉर्टेस्ट पाथ पता किए हैं, जिसमें नोड आप इंक्लूड क्या कंसिडर किए थे, 0 and 1, 0 and 1। तो जब D2 कैलकुलेट करेंगे तो D1 देखिए, तो आप क्या, आपने पहले से पता कर लिए कि शॉर्टेस्ट पाथ D1 में अगर 0, 1 नोड को हम कंसिडर करेंगे तो क्या हो, D2 में आप क्या करिए, आप नोड 2 को कंसिडर करके देखिए, तो D2 आपको क्या बता देगा कि अगर D1 देख के करेंगे तो जब नोड 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। अगर आप D0 देख के डायरेक्ट D2 करेंगे तो सिर्फ आप क्या, दो नोड ही कंसिडर कर पाएंगे, 0 and 2, क्योंकि D1 में आपने पहले से 0 and 1 कंसिडर कर चुके हैं। So D2 is the set of minimum cost between every pair in which we could allow node 0, 1 and 2. So that's why we should use D1 to find D2, ठीक है। तो D2 देख बनाने के समय D1 देखेंगे। क्लियर है, किसी कोई डाउट है क्या? डाउट रहने से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, जो मैं बोला हूं नोट करके लिख देते हैं। सो गिव ए नोट एंड राइट, we are going to we are going to we are going to take we are going to take D1, we are going to take D1 to compute, we are going to take D1 to compute D2, हम D1 लेंगे to compute D2, because already the base known path, because you right, because already the base known, देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें सब कुछ बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी द बेस्ट नोन पाथ by including node 1, node 1 नो, तो आपको नोड 1 को इंक्लूड करके आपको पहले से ही पता है, तो आप जब D2 कैलकुलेट करेंगे तो D1 देखिए। नाउ वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग, नाउ नाउ वी आर नाउ वी आर जस्ट नाउ वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग नाउ वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग इट टू नोड 2, मींस एक्सटेंड करें किसमें, नोड 2, ठीक है। तो लेकिन अगर कुछ लोग D0, अगर D0 यूज करेंगे तो गलती हो जाएगा, तो उसका भी लिख देते हैं। इफ वी यूज इफ वी टेक D0, वी टेक D0, अगर आपका नहीं, आप नहीं लिखे होंगे प्रीवियस स्लाइड का तो आप बोलिएगा, मैं प्रीवियस स्लाइड चले जाएंगे। इफ वी टेक D0 and apply the same method, and apply the same method as we find as we find as we find out D1, as we find D1, then it will just then it will just end up including only one vertex, then it will just end up including only
one vertex, that is V2. Only one vertex, that is node 2. But but we want to include, but we want to know the base known path, path by including node 1 as well as node 2. Okay, सो इसका मतलब क्या हुआ, D2 का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम नोड आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, it means we want to find out the shortest path in which the maximum number of vertices are 1 and 2. It means we want to find the shortest path. It means we want to find out the shortest path in which the maximum number of vertices are 1 and 2. इसमें 1 and 2 है. सो हम क्या यूज करेंगे, सो वी यूज D1 टू फाइंड D2. तो हम D1 यूज करेंगे टू फाइंड D2, एंड सिमिलरली वी यूज D2 टू फाइंड D3, एंड सिमिलरली फॉर D3 वी यूज D2. हम D2 यूज करें. तो ये कब तक करते रहेंगे, कब तक हम इस तरह करेंगे, जब तक हम सारे नोड को कंसिडर नहीं करेंगे. तो D0 हुआ, D1 हुआ, D2 हुआ, D3 हुआ, D4, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्टिसेस है. सिंस हियर वी आर हैविंग 4 वर्टिसेस, तो so till we have to consider at most 4 vertices, so we have to find the shortest path including all the 4 vertices. ठीक है, तो अब हम D2 करते हैं. so D2, जब हम लोग D2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4. सो देखिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर भी 2 ऑलरेडी है. तो ये जो पाथ आपको जो D1 में आपको मिला था वो सेम होगा यहाँ पर भी, क्योंकि आपको पहले ही आप D2 तो आप उसमें कंसिडर किए थे, पाथ में था ही 2. तो अब फिर 2 को कंसिडर करेंगे तो भी तो वही आएगा ना, मतलब पहले से ही पाथ में 2 है. तो इसमें क्या आया था D1 में 2 पे क्या है, 11073 लिख दीजिए, 11073. सो हेयर ऑल्सो 11073 सिमेट्रिक है. ठीक है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम सेम होगा, 1 2 1 0 ही होता है. अब 1 2 3 आपको पता करना है 1 2 3 क्या होगा. सो 1 2 3 आप कैसे करेंगे, 1 2 3 आपका क्या होगा, मिनिमम. एक आप डायरेक्ट चल जाइए 1 2 3. देखिए यहाँ जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 2 3 जा रहे हैं बाय इंक्लूडिंग दी नोड 1, एटमोस्ट इंक्लूडिंग नोड 1, बिकॉज हम D1 देखेंगे. और इसमें क्या है, 1 से पहले आप 2 के पास जाइए, फिर 2 से आप 3 के पास जाइए. सो मिनिमम आप लेंगे. सो 1 से 3 आपका क्या है, सो फ्रॉम 1 to 3 you are having, from 1 to 3, say D1, 1 to 3 is your 1, 1 to 3 is your 1, and 1 to 2. So you see in your graph, if you will go 1 to 2, 1 to 2 is your 11, then 2 to 3, 2 to 3 is your 7. So minimum is your 1, so it is going to be your 1, is going to be your. Now similarly 1 to 4 you will find, and 1 3 is equal to 3 1, symmetric है. 3 1 क्या होगा आपका, so 3 1 भी आपका 1 हो गया. Now 1 to 4 you will find, 1 to 4, it's going to be minimum. Okay, it's going to be a minimum. 1 to 4 direct, या फिर 1 2 you will go to 1 to 2, then 2 to 4. So 1 to 4, if you will see the D1, in D1 1 to 4 is your 6. Now if you want to, now without including the node, this without including the node 2 is your here 11, and 2 to 4 is your 3. So here 6. So you got 6.
सो 1 to 4 and 4 to 1 is going to your same. 6 मिला हमें, ठीक है, it's going to your 4 to 1. Now we will find, now we will find 3 3 3 3 is 0. Now 3 4 3 4 we will find. 3 4. So 3 4 is going to same as 4 3, and which is going to be minimum of, first go 3 to 4 or 3 to 2, then 2 to 4. So 3 to 4 is your 3 to 4 is your 2, and 3 to 2 is your 7, plus 2 to 4 is your 2 to 4 is your 3. So minimum is your 2. So you are going to use 2. It is going to be same as 3 to 4, 4 to 3 to. So this you got D2. Now if you will see, the D2 is also same as D1. D1. It means, if you are not, if you will not include the node 1 or 2, you are going to get the shortest path. You are going to get the shortest path. Now similarly we are going to use D3. Now similarly we are going to use D3. So अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी D3 में क्या मतलब है, आप लोग, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, ठीक है, अब मैं नहीं लिखता हूँ. तो D3 में क्या है, आप क्या मैक्सिमम कौन कौन से नोट्स यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम नोट्स यू कैन इंक्लूड, मैक्सिमम नोट्स, तो हमें D4 तक जाने के लिए 4 नोट्स आप इंक्लूड करके शॉर्टेस्ट पर पता कर सकते हैं. मैक्सिमम नोट्स वी कैन इंक्लूड हेयर इज 1 2 3, ठीक है. सो अब ये करते हैं. तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4. सो 1 2 1 0. अब देखिए 3 है, तो 3 को आप जब कंसिडर करेंगे तो जो D2 में जो 3 आया था, D2 देखिएगा आप, ठीक है, D2 में जो 3 का था वही सेम होगा. तो यहाँ पे है 1 है, 7 है, 0 है एंड 2 है. सो यहाँ क्या हो जाएगा 1 7 0 2, बिकॉज सिमेट्रिक है. इस कॉलम में जो होगा इस रो में भी वही होगा. तो 1 to 2. सो 1 to 2 आप पता कर रहे हैं शॉर्टेस्ट, तो मिनिमम पहले आप 1 to 2 डायरेक्ट चल जाइए. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मतलब क्या है कि नोड 1 और 2 को कंसिडर करके, यहाँ पे क्या है 1 से आप पहले किस में जाएंगे 3, फिर 3 से 1. तो ये जो 1 2 का जो वैल्यू है ना, आप D1 का देखेंगे, D2 का, क्योंकि आप D3 कंसिडर कर रहे हैं. सो 1 2 का आपका वैल्यू है, 1 2 का वैल्यू आपका 11 है. 1 3 आपका क्या है, 1 3 आपका 1 है, एंड 3 से 1, एंड 3 से 1 आपका क्या है, सॉरी 1, सॉरी 3 से 2 होगा, इट शुड बी 1 से 3, फिर 3 से 2, 3 से 2 आपका 7. देखिए 8. यहाँ हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया. मतलब आप जब 1 से 2 जा रहे थे, देखिए आपका ग्राफ क्या था, यहाँ देखिए. सो ग्राफ आपका यहाँ पे है. हाँ, आप जब 1 से 2 के पास जा रहे थे, तो जिसमें आप नोड इंक्लूड कर सकते थे सिर्फ 1 एंड 2, तो आपको देखिए शॉर्टेस्ट पाथ आपको 11 मिल रहा था. लेकिन अब आप नोड 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पाथ में. तो जब ये पाथ कंसिडर करेंगे, देखिए 1 से 3 गए, फिर 3 से 2, देखिए तब शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है. देखिए D3 हमें बेटर पाथ दे रहा है 1 से 2 के लिए, वो 8 हो गया, ठीक है. देखिए 1 2 तक तो नहीं मिला, लेकिन 3 में मिला, क्योंकि नोड 3 को इंक्लूड करेंगे तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा 1 से 3 के लिए, ठीक है. ऐसे ही करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, थोड़ा बड़ा. देखिए पहली बार कर रहे हैं इसलिए ये सब मैं लिखा दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है. सो 1 से 2 आपका क्या हो गया, सो 1 से 2 आपका क्या हो गया 8, ठीक है, क्योंकि आपका मिनिमम क्या था यहाँ पे 8. सो 1 से 2 इज इक्वल टू 2 to 1. तो 2 to 1 भी आप दे दीजिए, 2 से 2 1 आपका 8 हो गया, ठीक है. 1 to 2 1. अब 1 से 4, 1 4 अब करेंगे, ठीक है. 1 4 आप मिनिमम लेंगे, मिनिमम. तो पहले आप डायरेक्ट ले लीजिए 1 से 4. दूसरा आप क्या कीजिए, 1 से आप 2 के पास जाइए, ना सॉरी 3 यहाँ चल रहा था, 1 से आप 3 के पास जाइए, फिर 3 से आप 4 के पास जाइए. तो 1 से 4 आप D2 देखेंगे, 1 से 4 आपका 6 है, 1 से 4 आपका 6 है. 1 से 3 आप देखेंगे ग्राफ, तो 1 हो रहा है, फिर 3 से अगर 4 आप जा रहे हैं तो 2 हो रहा है. देखिए यहाँ भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया. अगर आप नोट 1 से 4 अगर आपको जाना है, अगर आप नोट 3 को कंसिडर करेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है 3, ठीक है. 3 मिल गया. देखिए समझ में आया ना.
ये भी हो गया आपका 3। अब 2 to 2 तो 0 ही होगा। 2 to 4 पता करते हैं, 2 to 4 पता करते हैं, 2 to 4 पता करते हैं। 2 to 4 थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, लेकिन इजी है। तो 2 to 4 आप पहले बिना इंक्लूडिंग नोट 3, अब इंक्लूडिंग 2 से 3, फिर 3 से 4। तो 2 से 4 आपका क्या है? 2 से 4 है आपका 3। अब 2 से 4 आपका 3 है, अगर जब इंक्लूड नहीं करें नोट 3। अब 2 से 3 के पास जाएंगे तो यहाँ 7 आ रहा है, 3 से 4 के पास जा रहे हैं, 3 से 4 के पास जा रहे हैं तो 2 है। तो मतलब बिना इंक्लूड करेंगे नोट 3 तभी मिनिमम मिलेगा, तभी मिनिमम मिलेगा। तो ये 3 ही होगा, तब ये 3 ही होगा। सो 2 से 4 आपका क्या हो गया? 2 से 4 हो गया आपका, तो 8072807773, ठीक है। और ये 4 to 4 तो 0 ही होता है। ये आपने D3 पता कर लिया। D3 क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बाय इंक्लूडिंग नोड 1 2 3, ठीक है। तो हमें कब तक जाना है? जब तक सारे नोड को हम इंक्लूड नहीं करके पता कर जाए शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब D4 करेंगे। अब क्या करेंगे? D4। जब D4 करेंगे तो हम क्या देखेंगे? D3। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा, किसी को कोई भी डाउट होगा तो बोलिएगा। तो जब अब हम D4 करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देंगे? वर्ड नोट्स 1 2 3 4। फिर इस तरह यहाँ पे हम दे देंगे 1 2 3 4। सो 1 से 1 आपका क्या हो गया? 0 ही होगा, ठीक है। देखिए 4 कंसिडर करें ना, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला रो और ये वाला कॉलम तो सेम हुआ, क्योंकि आप पहले से ही आप D3 में नोट 4 को आप कंसिडर किए ही थे। तो उसे लिख देते हैं हम। D3 में जो है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, यहाँ भी 3 3 2 0। सो 1 से 2 के लिए अब करेंगे 1 से 2। सो 1 से 2 क्या होगा? मिनिमम 1 से 2 चल जाइए, और यहाँ 1 से आप 4 के पास जाइए, फिर 4 से आप 2 के पास जाइए। 1 से 4, 4 से 2। आप 1 से क्या किए? 4 के पास गए, 4 से आप 2 के पास गए, ठीक है, क्योंकि 4 कंसिडर करना है। सो 1 से 2 आपका क्या था? 1 से 2 आपका है, 1 से 2 है आपका 8। अब 1 से अगर 4 के पास जाएंगे, 1 से अगर 4 के पास जाएंगे तो यहाँ पे आपका वेट हो रहा है 6। और 4 से अगर 2 के पास जाएंगे, 4 से 2 के पास तो 3, तो ये 9 हो जा रहा था। मिनिमम आपका 8 हो रहा है, तो 1 से 2 आपका 8 हो जाएगा। 1 से 2 आपका, हाँ, तो 1 से आप, एक मिनट, 1 से 4 आपका 3 है क्या? 1 से 4, 1 से 4, अगर 1 से 4 आप देखेंगे तो ये आपका 3 है, सॉरी ये आपका 3 है। हाँ हाँ, वही गलत हो गया। 1 से 4 3 है, कर, थैंक यू मधुरा। 1 से 4 आपका 3 है, ठीक है। 1 से 4 आपका 3 है, मैं थोड़ा गलत देख लिया था, ठीक है। 1 से 4 3 है, तो आपको वो डी और ये हो गया, तो ये हो गया आपका 6 हो गया, 6 हो गया। तो आप इसे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 2 6। अब ये 0 हो गया। अब 1 से 3 कर लेते हैं, 1 से 3। सो मिनिमम हो जाएगा पहले डायरेक्ट 1 से 3, और दूसरा हो जाएगा 1 से 4, फिर 4 से 3, 4 से 3। सो 1 से 3 है आपका, 1 से 3 है आपका 1। 1 है तो यही मिनिमम ही होगा, नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो होगा कि उसे एक और 0 तो कहीं है नहीं। 1 से 4 आप देख लीजिए, 1 से 4 आपका 3 है, तो मिनिमम 1 ही होगा। आप ऐसे टाइम बचा सकते हैं, तभी मैं लिख देता हूँ 4 से 3, क्योंकि बाद में अगर कोई रिकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 से 3 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हो गया 0 6 1 3, ये भी इधर हो जाएगा 0 6 1 3, सेम है। 2 to 2 तो 0 ही होगा। 2 to 3 पता करना है, 2 to 3 पता करना है, सॉरी 2 to 3 पता करना। सो 2 to 3 में हम क्या करेंगे? हम मिनिमम पता करेंगे, एक डायरेक्ट 2 से 3, और दूसरा 2 से हम 4, फिर 4 से 3,
ठीक है। सो 2 से 3 हमारा क्या है, अब D3 देखिए, 2 से 3 है आपका 7, और 2 से 4 है आपका 3, एंड 4 से 3 है आपका 2, 5 हो जा रहा है। सो आपका 5 हो गया, 2 से 3 आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो आप अगर नोट 4 यूज कर रहे हैं तो कम हो जाएगा। सो 6053, सो ये इधर भी हो जाएगा 6053, 3 से 3 जीरो, देखिए ये आपको मिल गया शॉर्टेस्ट पाथ। दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज दी। इसी तरह आपको करना है। D4 क्या है, आप यहाँ पे क्या इंक्लूड करें, मैक्सिमम नोड्स यू आर कंसिडरिंग हियर, maximum nodes here we are considering to find all pair shortest path is 1 2 3 4, सबको कंसिडर करें कि अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो रहा है, 2 कंसिडर करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो रहा है, 3 कंसिडर करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो रहा है, और 4 कंसिडर करूं तो क्या हो रहा है। सो this is the length, this is the length of this is the length of shortest path, this is the length of shortest path between, this is the length of the shortest path between every, this is the length of shortest path between every, ठीक है। क्लियर है, किसी कोई डाउट है, तो इस तरह आपने पता कर लिए सिंगल्स ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ आपका यहाँ पे हो गया। इसी तरह आपको, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड दी all pair shortest path. Now we are going to see the time complexity and space complexity. So you know that since it is a dynamic approach, we have used the bottom up approach. This is a bottom up this is bottom up, this is bottom, this is bottom up, this is bottom up dynamic approach, this is bottom up dynamic approach. Now if we will use this approach, then what is going to be the time complexity? First we will see the time complexity, then space complexity, then we will use the we will write the code. Okay, time complexity. So you know that in case of dynamic programming, the time complexity is going to your number of sub problem, number of sub problem, number of sub problem into time required to solve, into time required to solve each sub problem, time required to solve each sub problem. So if you see here number of sub problem, you are first D0, it's same as weighted matrix. It's same as weighted matrix. That should be given in your graph only. Okay, weighted matrix D0 without including in the path any nodes. So you are calculating D1, whatever will be the number of vertices, D1, D2, D3, and in every you are having a square matrix of 1 2 till V. 1 2 means V. Okay, in you are having V row and V column. So square matrix. So number of sub problem here like you are having V square. Here also you are having V square. Here also you are having a V square. So total number of sub problem you are getting V square, V square, V square like this. Okay, you are getting always V square, V square, V square. And how many this kind of vertices you are going, this D1, D2 matrices you are going to get V, because D1, D2, D3, D4, V vertices you are going to get, V matrices you are going to get, and each matrices you are going to have V square sub problem. So total sub problem is going to your V cube. देखिए यहाँ हम पता करें कितने नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, अब D1 कैलकुलेट किए, D2 किए, D3 किए, D4 किए। D1 में कितने सब प्रॉब्लम थे, n स्क्वायर, अगर V वर्टिसेस है तो V स्क्वायर, D2 में भी फिर V स्क्वायर है, D4 में भी V स्क्वायर है। सो आप कब तक बनाते हैं ये मैट्रिसेस D1, D2, D3, जब तक जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है। तो इन ईच वर्टेक्स, in each matrix there will be V square sub problem, and for every vertex, sorry,
So in each matrix we are having a V square subproblem. In each matrix we are having a V square subproblem, and how many matrix we are having? V. So total number of subproblem is going to be V square. Total number of subproblem is we are going to get is V square. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और यही सब आपसे पूछेंगे. नाउ to solve each problem, so total number of sub problem you are getting is your number of sub problem you are getting is V cube. Okay, V cube. Okay, now to find the solution of any problem, so what you are doing, you are finding the minimum. You are finding the minimum, either this and this. You will go to the if you are calculating d4, you will go in d3 and you will see the value of these two, and you do the addition and find the minimum. So that is going to take a constant time. Okay, आपको अगर जब 2 3 पता करना है, अगर ये d4 का है, तो आप d3 के टेबल में जाते हैं, 2 3 देखते हैं, फिर यहाँ 2 4 देखते हैं और 4 3 देखते हैं, और सिंपल एडिशन करते हैं, फिर पता करते हैं इन दोनों से मिनिमम कौन सा है. ये तो कांस्टेंट टाइम लेगा ना. तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम आपको पता हुआ कि v स्क्वायर है, एंड टू सॉल्व इस सब प्रॉब्लम द टाइम टेकन इज योर कांस्टेंट. सो इट इज गोइंग टू योर v go of v क्यूब. v क्यूब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए. अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जो मैट्रिसेस जितने हैं. तो यहाँ पे बहुत कोई सोच रहे होंगे, मेनी ऑफ यू मे बी थिंकिंग दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू योर, so for you are requiring v number of vertices, v number of matrices you require, and each matrix is going to have v square. Okay, so you may be thinking that its space complexity is going to be v cube. Lekin we can optimize that. It is not actually, see, the algorithm that I will show you, that I have taken from the Corman book, that is going to get the space complexity as v cube, but you can optimize that space complexity. We can optimize the space complexity. हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को. देखिए, अगर डायरेक्टली जिस तरह हमने किए हैं, हमें कितने मैट्रिक्स लगे, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने लगे, d1 d2 d3 d4. तो जितने और एक मैट्रिक्स का साइज था v स्क्वायर, तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया v क्यूब. ओके, लेकिन हम एक चीज हम देखते हैं कि जब whenever we are calculating d1 we are seeing d0, whenever we are calculating d2 we are seeing d1, whenever we are calculating d2 d3 we are seeing d2. Okay, so at any point of time we require only two matrices. We don't require at a time v number of matrices. We require at a time only two matrices. Like first, if they will give you d0, you find d1. Now you assume it as d1 only, and now you use this matrix as d2. Okay, now you find d2 from here. Now by using this d2 you make d3, and this will now act as d3. देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं. नाउ सी लेट मी एक्सप्लेन. इफ यू आर, देखिए आपके पास अगर दो मैट्रिक्स है d0 d1, d0 है, आपने d1 कर दिया. देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमेशा हमें सिर्फ एट ए टाइम दो ही मैट्रिक्स लगेंगे. ओके, एक d0 लगा, एक d1 लगा. अब आपको d2 कैलकुलेट करना है, तो d2 जब कैलकुलेट करेंगे तो आप d1 देखेंगे. तो ये जो मैट्रिक्स था जो d0 था, अब इसे आप क्या कर दीजिए, d2 कर दीजिए. तो आप इससे कैलकुलेट कर लिए d1 देख के. अब d1 ये है, आपको d3 करना है, तो इसे अब d3 कर दीजिए, यहां से बना ली. अब आपको d4 करना है, तो d3 देख के, d3 से देख के d4 कर दीजिए. देखिए बन गया. सो एट ए टाइम यू विल रिक्वायर only two matrix. So one side is going to your n square, if n is the number of vertices. So you write v only, it will not have any ambiguity. It will be v square plus big of v square. So it is going to be v square. Please let me know whether space complexity is clear or not. So this is the optimized space complexity. Okay, optimized one. But this is not written in your Corman book. In Corman book, they are considering as for every matrices v square, and total you are having a v matrices, so they are assuming, they are giving as a v cube. That code I will now show. I am going to show that code. Is it clear to all of you? देखिए क्लियर है ना सभी को. सो इसके लिए मैं थोड़ा लिख देता हूं आप लोगों को, इसे नोट करके आप लिख लीजिए कि कैसे ये हुआ, बस ये कहीं मिलेगा नहीं आपको. हेयर वी डोंट, please let me know whether it is clear or not. Now I will write the code. Okay, so here we don't need n matrices. हमें n matrix नहीं लगेगा यहाँ पे. Here we don't need n matrices.
when we are calculating when we are calculating d1 we are using we are using only d0. जब कैलकुलेट कर रहे हैं d1 तो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ d0. एंड when we are calculating and when we are calculating d2 we are using only d1. हम सिर्फ d1 यूज कर रहे हैं and so on. So at any point of time so at any point of time at any point of time so at any point of time we need so at any point of time we need only two matrix. We need only two matrix. The current one, we need only two matrix. The current one, the current matrix and the previous matrix. Current matrix and the previous matrix. The previous matrix. Okay. So therefore we should only declare two matrix. तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ दो ही मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे. therefore we should only declare two. We should only declare two matrices and keep on using it as if first matrix is used as d0 and second matrix as d1. Then next time we use first matrix as d2 and second matrix as d1 and so on. ठीक है, क्लियर है. चलिए ये भी हो गया होगा तो डन बोल दीजिए. अब हम लोग कोड देखेंगे. बॉटम ऑफ डायनेमिक एल्गोरिदम देखेंगे इसका, जो कोरमेन बुक से हमने लिए हैं. ठीक है, तो लिख लीजिए देयरफॉर space required is for two matrix each of size p square. So space complexity, so optimized space complexity is equal to big of v square plus v square to b square, where v is number of चलिए अब हम लोग कोड देखते हैं. ठीक है, जैसे हमने किए हैं. नाउ वी विल सी द कोड ऑफ फ्लूइड वर्जन. ओके, so this is the weight matrix they have given. Okay, so w is weight matrix they have given. N equal to, first I am writing w dot rows. So w dot rows is going to give you the number of vertices you are having. So n is number of rows and number of rows is number of vertices. Number of rows हमारा क्या हो रहा है, number of vertices. Okay, now you will find d0. So d0 is going to your base condition, which is going to be w only. Now we will find d1, d2, d3 like this. So what we are going to do, always for
k equal to 1 to n. We are going to run 1 to n. d1, d2 we are going. So let d1 we have created. So dk is 1, then d2. So it's dij. I to j we are finding the shortest distance, and by including the k vertices. Be a new n into n matrix. V into n, v you can even write as v. Okay, here n is number of vertices. Okay, n into n matrix. Now, so first you have, they have given you w, that is going to be weight matrix. You, after seeing the weight matrix, you find the number of rows. That number of rows is going to be number of vertices. Now you have find d0. D0 is equal to w. D0 is equal to w. W is your weight matrix. Now for k equal to 1 to n, 1 to n for k1, d1, d2, d3 you are going to find. Let d1 is going to be di to j, okay, above k, be a new n into n matrix. Okay. Now for I equal to 1 to n and for j equal to 1 to n, dij k. So for every time you have to call this for I equal to 1 to n, for d j equal to 1 to n, because for every, see, this is going to your, matrix you have calculated. Now every, for here, then here you will calculate like this. 1 to n, 1, then j equal to 1, 2, 3, like this. You are calculating like this in row major order. Okay. So you are going to find the minimum that we have seen. Okay. So first you have taken, see, first I have taken k equal to 1 to n. Every time I am creating d1, then d2. So when I have calculated d1, after calculating d1, d2, d3 like this, then I am going to find the value for I equal to 1 to n, for j equal to 1 to n. D of ijk is going to minimum of dij without including, okay, without include kth vertex, or this is by including. So it will go di to k, then dk to j, and it will have k minus 1 vertices, k minus 1, and it will take the minimum of this two. So this is without including without including node k, and this is with including node k, with including. You will take the minimum like this. It will give for every vertices, for every cell you will get it. Okay, see, for di1, for every you are going to get. Okay. So for k equal to 1 to n, dk you have created. Now for that you are going to fill for all the, means for di you have done this, then for d2 you will create, then you will calculate, then d3 you will do this, and your answer is going to be d4, whatever will be the number of vertices. So here dn, so you return d. Is it clear to all of you? इसका यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो? फॉर दिस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम होगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैन यू समराइज दिस कोड? अच्छा, हाँ, समराइज कर देते हैं. देखिए, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लॉइड वर्सल डब्ल्यू आपने वेट लिया, यहाँ पे वेट मैट्रिक्स, फिर आपने पता किया कि कितने वर्टिसेस है यहाँ पे. n इक्वल टू डब्ल्यू डॉट, जितने रोज रहेंगे वही वर्टिसेस है. n इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज इज नंबर ऑफ वर्टिसेस. नाउ d0 इज w. d0 क्या है आपका? w, वेट मैट्रिक्स. d0 आपको क्या है? w. नाउ फॉर k इक्वल टू 1 टू n, फॉर k इक्वल टू 1 टू n, d1, d2, d3 लाइक दिस. आप पहले आप d1 क्रिएट किए, और सबका क्या हो गया, अपने dij के n इंटू n मैट्रिक्स क्रिएट है. देखिए ये आउटर लूप है, ठीक है, आउटर लूप है. पहले ये किए, उसके बाद ये करने का d1 आप क्रिएट किए, d1 क्रिएट हुआ. अब d1 के आपने हर जगह, d1 के आपके हर जगह पे k नोड लेके, जब d11 पता कर रहे हैं बाई 1, d12 पता कर रहे हैं बाई 1, d13 पता कर रहे हैं बाई 1. देखिए i इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू n. सो पहले 1 रहा, फिर j 1,
फिर I1, फिर J2, फिर I1, K तो आपका 1 ही है क्योंकि K आपने यहाँ पे 1 लिया है, K इक्वल टू 1 to N। तो पहले 1 हुआ तो आप किए, ये फिर 1 रहा तो ये किए, फिर ये लूप से बाहर निकला, फिर K इक्वल टू 2 हो गया, फिर D2 आप क्रिएट किए, फिर बनाए, फिर D2 के लिए आप किए, D2 के लिए, ठीक है, फिर D2 के लिए ये हुआ तो आपने ये किए, फिर इससे बाहर हुआ, फिर D3, फिर इसी तरह करके आप D1, D2, D3 जिस तरह हमने किए उसी तरह यहाँ पे हमने कोड लिखे, एकदम सेम उसी तरह काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब D2 होगा तो यहाँ पे D11 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा के, फिर D12 होगा, यहाँ हो जाएगा के, फिर D13 होगा, सॉरी 2 2 इस तरह। क्लियर है क्या? इस तरह वो सारा कैलकुलेट कर देंगे, तो आप अब फिर रिटर्न कर दीजिए n, ठीक है, dn। तो यहाँ पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिसेस था आपका, बिगो n n से डिनोट कर रहे थे तो n क्यूब हो गया, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू योर, देखिए ये सभी गेट एग्जाम में ज्यादा पूछने का चांसेस है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, इस प्रॉब्लम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगो ऑफ एन क्यूब। क्यों? क्योंकि एन मैट्रिक्स आप बना रहे हैं और सबका साइज एन स्क्वायर है, क्योंकि आप यहाँ तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, ये आपका फोरमेन में, यहाँ आपका एन क्यूब होगा, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक गेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फ्लोइड वर्जन आपका कंप्लीट हो गया, जो बाय यूजिंग डायनेमिक अप्रोच हमने किए थे, ठीक है, क्योंकि डिक्स्ट्रा और इससे करते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाता, इसीलिए हम लोग डायनेमिक किए। सो गेट 2016 दे हैव आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स, एक नंबर के लिए पूछे, एक नंबर के लिए। सो दी, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। दी फ्लोइड वर्जन, दी फ्लोइड वर्जन, देखिए गेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं एक देख लेते हैं। तो फ्लोइड वर्जन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम फॉर all pair, for all pair shortest path, for all pair shortest path, all pair shortest paths, all pair shortest path computation, computation is based on a greedy paradigm। बताइएगा आप लोग, ठीक है, किस पे बेस्ड है? डिवाइड एंड कॉन्कर, सी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, और डी है आपका, और डी है आपका नादर डी। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन आएगा गेट में, नादर ग्रेडी, नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही करते हैं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या याद रखना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे तो एन क्यूब है लेकिन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन का एन स्क्वायर, और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये चीजें आपको याद रखना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देख लिए, पहले D0 होगा, फिर D1 होगा, फिर D2 होगा, D3 होगा, D1 कैलकुलेट करेंगे तो D0 करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको देखिए, एक बार मैं शुरू से, सो देखिए D4 जब कैलकुलेट कर रहे थे तो D3 कर रहे थे, D3 से देख रहे थे, तो इसमें यही सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सिमेट्रिक होगा अगर अनडायरेक्ट है तो D0 जब किए, D0 वेटेड में, फिर D1 किए, D1 जब किए तो D0 देखे, फिर D2 किए, D2 जब किए तो D1 देखे, D3 फिर किए, D3 जब किए तो D2 देखे, ठीक है, ये हो गया। फिर डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यहाँ और बेलमैन फोर्ड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक छोड़ देंगे, आपको बोलेंगे जब के ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, के इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, तो ये ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा आपसे, और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आपसे पूछेंगे यहाँ पे,
कि इसमें से क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, आपसे पूछेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं। और आपसे फिर वो पूछ सकते हैं कि अगर आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा। तो जब आप बेलमैन फोर्ड यूज करेंगे तो डेंस ग्राफ में आपका v टू द 4 हो जाएगा और स्पार्स में v टू द3 हो जाएगा। अब डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम अगर यूज किए टू फाइंड दी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एक नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिलेशनशिप भी क्या है ये भी मैं आपको बता दिया। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।